So dear students, now I have come with another method of adding two or more than two simple sentences to make one simple sentence, and this method or technique is called by using conjunction. And by using conjunction means you're not going to add all the conjunctions to add two or more than two simple sentences. You can add only one conjunction, and that is and, A-N-D, and. This conjunctions can be used for adding two or more than two sentences to make one simple sentences. You cannot add another conjunctions to use this technique. Now, first of all, you need to know more about this thing. First thing is that if you are adding two or more than two simple sentences by using and conjunction, remember that if you want to add two sentences together, then it cannot be added, because this technique is not meant for adding two sentences. You can add two words and two phrases. Apart from words and phrases, you cannot add sentences in this technique by using this technique. So remember that only and only words and phrases. So you can either add words or phrases to use this conjunction and. If you want to add two sentences together by using and conjunction, it will become a compound sentence, not sentences by using conjunction. This rule will not be followed then. So even if you want to add two verbs together, like if I say that stop and wait, these are two verbs, stop and wait, and stop, wait, two verbs, and I have tried to add these two verbs by using and conjunction. Okay, we cannot do it. Why we can't do it? Because if we say stop, it means the sentence is imperative sentence where the subject is hidden, so it's again become a sentence. Understand? भाई हम जो कहते हैं कि रुको, वेट करो, बैठो, उठो, तो ये क्या है? ये तो अपने आप में एक सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है. तो इस तरह के अगर दो वर्ब भी आते हैं जिसमें सब्जेक्ट हिडन है, उसमें भी हम एंड कंजंक्शन नहीं यूज कर सकते. सो द थिंग इज दैट सिर्फ दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को अगर हम जोड़े तो हम जो है इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं. जैसे अगर हमने कहा कि टॉम एंड श्याम, सो हियर वी सी दो नाउन, या आप कह सकते हैं कि दो नाउन या दो एडजेक्टिव को भी अगर हम जोड़े तो भी हो सकता है, टॉम एंड श्याम. या फिर जैसे दो नाउन हो गए, अगर हम दो एडजेक्टिव को जोड़े तो हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, है ना. ये दो एडजेक्टिव को हमने जोड़ लिया. इसी तरह अगर हम दो फ्रेजेस को जोड़े तो इस तरह हो सकता है, एट सनसेट एंड, ये नहीं, दूसरा बता रहा, इन द मॉर्निंग and in the evening. तो ये क्या देखा हमने कि अगर हम ये कंजंक्शन यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो हम दो वर्ड दो फ्रेजेस को अच्छे से मतलब जोड़ सकते हैं. और अब वो चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो वर्ड्स में, और दो सेंटेंसेस को हम नहीं जोड़ सकते. ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको करके देखें. सो आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ टू ऐड एंड व्हेन टू ऐड. पहले व्हेन टू ऐड कब जोड़े? जब आपके दोनों सेंटेंसेस के फाइनाइट वर्ब जो है सेम हो. इज इट?
अगर आपके फाइनाइट वर्ब सेम हो, आप यूज कर सकते हैं इस मेथड को। और कैसे जोड़ें? जब आपके फाइनाइट वर्ब एक हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, आइदर सब्जेक्ट डिफरेंट हो या ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। तो जो डिफरेंट है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए, आपका ये सब्जेक्ट एक है, फाइनाइट वर्ब एक है, ऑब्जेक्ट आपका अलग है ना? तो ऑब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ देंगे। तो कैसे? आई नीड टू बाय अ शर्ट, आई नीड टू बाय अ ट्राउजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विल राइट इट दैट आई नीड टू बाय, as buy is the same in both of the sentences, this is finite verb buy, तो I need to buy a shirt, अब हम and लगाएंगे, and a trouser। ठीक है, I need to buy a shirt and a trouser, तो ये हमारा सेंटेंस जुड़ गया। और नाउ वी हैव वन फाइनाइट वर्ब, दिस इज बाय। ओके, अब दूसरा एग्जांपल हमको दे रहे हैं। अब जो यही सेंटेंस है, इसको देखिए, आई रेड अ नॉवेल, आई रेड अ मैगजीन, आई रेड अ न्यूज़पेपर टू। सो हियर वी सी दैट वी हैव थ्री सेंटेंसेस विद थ्री फाइनाइट वर्ब, आई रेड, आई रेड, आई रेड। So in these three sentences, finite verbs are same. Okay, subject is also same, I. Okay, only the thing is that object is different. Object first is novel, second is magazine, and third one is newspaper. So what we'll do that if we have more than 2 or 3 or 4 or 5 or many objects together, what we'll do that we need to put comma before each object. हर ऑब्जेक्ट के पहले हम कॉमा लगाएंगे, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, और आखिरी दो शब्द के बीच में हम एंड लगाएंगे। जैसे हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, आई रेड, अब रेड हमारा एक फाइनाइट वर्ब है, अ नॉवेल, कॉमा, अ मैगजीन, कॉमा, अब हमारा न्यूज़पेपर है, तो एंड लगा के, एंड अ न्यूज़पेपर टू। ठीक है, नाउ वी हैव वन फाइनाइट वर्ब, आई रेड अ नॉवेल, अ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर टू। याद रखिए, आपके पास जितने भी वर्ड्स हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, उन सब के साथ आप कॉमा लगाएंगे लास्ट 2 वर्ड्स के पहले, जैसे मैगजीन और न्यूज़पेपर, उसके बाद पे बीच में हम एक एंड लगा के जोड़ देंगे। ठीक है।